YouTuber Salim Vastik is fighting for his life after being stabbed inside his office in Ghaziabad. Vastik, who identifies himself as an ex-Muslim, has appeared on multiple TV shows and debates and speaks about his views on religion. On the morning of 27 February, he was in his shop when two men wearing helmets arrived on a motorcycle. After a brief conversation, one of the men suddenly pulled out a paper cutter and attacked him. Vastik tried to defend himself, but the two overpowered him and forced him to the ground. Police said the attackers stabbed him 14 times, mostly targeting his abdomen and throat. During the struggle, a glass table shattered and one of the attackers picked up a jagged shard and struck him about 8 times. CCTV also showed a woman who appeared hesitant, standing outside the office while the assault took place. The attacker subsequently fled the scene on a motorcycle, leaving Vastik on the floor. Police later identified them as brothers Zishan and Gulfam. Vastik's family rushed him to a nearby hospital before he was shifted to Guru Tegh Bahadur Hospital in Delhi, where he remained in critical condition as of publishing this report. While an investigation was underway to establish the motive behind the attack, police said the attackers were angry over Vastik's videos criticizing Islam. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath directed police to take strict action and multiple teams were formed to trace the suspects. On 1st March, the first encounter took place in Ghaziabad's Loni when officers tried to arrest Zishan. Officials said he opened fire at the police team, injuring 2 head constables. Police returned fire and Zishan died of his injuries. Less than 2 days later, on 3rd March, his brother Gulfam was also killed in an encounter in Ghaziabad's Vasundhara after police said he tried to flee and fired at officers. Their father later said his sons had committed a crime but added that they should have been arrested and tried in court instead of being killed in encounters. 27 फरवरी को यूपी के गाजियाबाद में एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली थीं। सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। 2 लोग आए और इनके दफ्तर में घुसने के बाद जब ये आराम कर रहे थे, धारदार हथियार से इनका गला काटने की कोशिश की गई। एक तरीके से सर तन से जुदा करने की पूरी कोशिश की गई। पूरे शरीर पे हमला किया गया और गले को काटने की कोशिश की गई। इस वक्त सलीम वास्तिक जो है अस्पताल से अपने घर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बार बार डॉक्टर के जाना पड़ता है, लेकिन इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। यही इनके हौसले को दिखाता है। सलीम वास्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम जी, पहले तो माफी चाहूंगा, आपकी जैसी स्थिति है और आपको बार बार परेशान करके मैंने आपसे बात करना इसलिए जरूरी समझा ताकि समझ सकें कि उस दिन क्या हुआ था। 27 फरवरी जब आप अपने दफ्तर में सो रहे थे, क्या हुआ अचानक से वो घटना जो आपके साथ बीती? मैं सोया हुआ था, अचानक चादर हटा के देखा तो 2 बंदे बाहर खड़े हुए, दाढ़ी में, मुस्लिम लिबास में। मैंने सोचा आसपास के लोग हैं, बहुत आते थे मुझसे मिलने, वहाँ प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस समझ के भी आ जाते थे। मैंने पूछा क्या काम है भाई? बोले कुछ बात करनी है। मैंने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या हुक्म है, क्या बात है। अंदर आते उन्होंने मुझ पे हमला शुरू कर दिया, गर्दन पे। हाँ, हालांकि अब ठीक हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हूँ। ये जो आवाज आ रही है ना, 1 आध दिन आएगी। मैंने भी उनकी गर्दन पकड़ी, मारने की भी कोशिश की, लेकिन 2 आदमियों के सामने लेटा हुआ आदमी कमजोर हो जाता है। तो बाकी सीसीटीवी में सब है ही। उन्होंने जो तस्वीरों में दिख रहा है, उन्होंने धारदार हथियार निकाले और आपको कई जगह मारा सीसीटीवी में, और जो गले पे वार था ये सर तन से जुदा की कोशिश थी उनकी? कर ही दिया था, बिल्कुल ही अलग हो चुका था मेरा सर। ये तो यूपी पुलिस, इन्होंने कोशिश करके टाइम पे मेरे को हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट टाइम पे दिला दिया। थोड़ा मैं सख्त जान आदमी हूँ जो बच गया, नहीं तो खत्म था मैं। सलीम जी, वजह क्या लग रही है? इन दोनों लड़कों के घर भी मैं गया था, उनके पिता से भी मेरी बात हुई थी। इनका कोई ऐसा कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं था। ये आपको क्या लगता है, आपको क्यों इस तरह से टारगेट किया? क्योंकि आप खुल के बोलते हैं अपने विचार। जिहादी मानसिकता,
मैं मुसलमान को ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं मुसलमान को कत्लेआम करते हुए देखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मुसलमान ऐसा हो कि हर आदमी देख के उसको सलाम ठोक के। मुसलमान ऐसा हो पढ़ लिख के कामयाब हो, सरकारी नौकरियों पे लगे। लेकिन ये मदरसे और ऐसी गंदी मानसिकता जिहाद वाले, ये हमारे मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। वो ही मेरे दुश्मन है, उन्हीं लोगों ने ये हरकत कराई है। भारत का मुसलमान उन लोगों का शिकार हो रखा है। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है भारत के, एक से एक अच्छे मुसलमान मिलेंगे आपको भारत के अंदर, लेकिन ये कुछ लोग हरकत करके पूरी कम्युनिटी को बदनाम करवा देते हैं। ऐसे क्या बयान आपने दिए थे या ऐसी कौन सी बात आप बोलते थे जिस वजह से इन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की, वो कौन सी बात है? मैं आज भी यही बोलता हूँ, कल भी यही बोलता था, आगे भी बोल लूंगा। कुरान ईश्वर की किताब नहीं है, इससे बचना चाहिए हमें। जो चीज हमें कामयाबी से रोक के गलत चीजों की तरफ ध्यान जाए, उस चीज को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है नमाज पढ़ना अच्छा है, पढ़ो, रोजा रखना अच्छा है, रखो, लेकिन जहाँ ये चीजें तुम्हें मिलती है वहीं से इंसान से शैतान बनते हो, फिर तुम पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को गंदा साबित करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दोनों का एनकाउंटर किया गया और बहुत जल्द इनको सजा मिली। इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। सबसे पहले तो यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने न्याय संगत काम किया है। जो कानून के तहत बनता है वो उन्होंने किया है। अगर यहाँ कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसकी पूजा नहीं होगी, उसको मारा जाएगा। ये हमारे संविधान के अंदर है। उसका बाप तो ये कह रहा है कि मेरे बेटों को मारना नहीं चाहिए था, तो मेरे बारे में उसने क्यों नहीं बोला कि मेरे बेटों को भी मुझे नहीं मारना चाहिए था? मुझे मारने का उसके बेटों का क्या हक है? उनका ये बयान था कि कोर्ट में मामला चलता, मारना नहीं चाहिए था। तो मेरे लिए भी कोर्ट में जाते, मुझे क्यों मारने भेज रहा था? मेरे लिए अलग रूल क्यों है? आप सोचो। मैंने तो संविधान भी नहीं तोड़ा, उन्होंने तो संविधान को ब्रेक किया है। उनका तो मरना जायज हो गया। हालांकि मैं खुश नहीं हूं उनके मरने से। हो सकता है उनके बच्चे भी हों, बीवी हों, किस तरह तड़प रहे होंगे, क्या उनकी हालत हो रही होगी। मैं समझ रहा हूँ उनका दर्द, लेकिन एक मजहब के अंदर पागल होके उन लोगों ने यह हरकत की, बहुत गलत किया। आपने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? एक्स मुस्लिम, आप कब से एक्स मुस्लिम हुए? क्या आप अभी इस्लाम को मानते हैं या आप सनातन को मानते हैं? एक्स सलीम कैसे आपका नाम पड़ा? देखिए, एक्स मुस्लिम मुझे सब लोग बोलते हैं, मैं मुसलमान ही हूँ, मेरा नाम भी मुसलमान है। सलीम मुसलमानों का नाम होता है। मैंने ये कहा है हमेशा कि मैं नहीं मानता कुरान को, लेकिन मैं एक्स मुस्लिम खुद को नहीं कहता। मानवता को मानता हूँ, मानवता को फॉलो करता हूँ, चाहे वो किधर भी हो। ज्यादातर सनातन के अंदर हमें मिलती है, उसको फॉलो करता हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं? आप नहीं पढ़ता। आपको पूरी जो, जैसे आप बता रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम आपका नाम पड़ गया है या आपने खुद नाम रखा अपना एक्स मुस्लिम? मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। मेरी बहन भी खड़ी है, मुसलमान है, भाई मुसलमान है, चाचा, ताऊ, नाना, मामा, फूफा, सब मुसलमान है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि आपका पूरा फैमिली मुसलमान है, लेकिन फिर एक्स मुस्लिम नाम पड़ जाना, इससे तो ये लगता है कि अब आप मुसलमान नहीं रहे। एक्स मुस्लिम का क्या मतलब है? मतलब क्या आप नमाज नहीं पढ़ते या रीति रिवाज जो होते हैं मुस्लिम समाज में वो नहीं मानते आप? हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। अलग तरीके से मेरा मानना अलग है और बाकी लोगों का मानना अलग है, मेरा अलग है। मैं इस टाइप मानवता, मैं मानवता के अंदर हूँ बस। मानवता के बाहर में कुछ नहीं मानता।
क्या आपने सनातन अपना लिया है, ये कह सकते हैं? असल में तो पैदाइशी हर आदमी, सनातन का मतलब होता है सदैव से सदैव तक। तो हम लोग कुदरती हैं, कुदरत को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो कुदरत को फॉलो करेगा, सनातन के मायने भी कुदरत है, तो कुदरत को मैं मानता हूँ। कुदरत किसी भगवान, जिसे अल्लाह कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, चाहे कोई कुछ भी कह लो, उसकी तैयार करी हुई है। मुझे पता है कि है, दिख रही है सामने। मतलब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब ये धर्म? मैं बाउंड में नहीं हूँ, मैं बाउंड में नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई ठप्पा नहीं है स्पेशल, नहीं। तो सिर्फ मानवता धर्म है आपका, आप किसी भी धर्म को नहीं मानते? धर्म को मानता हूँ। धर्म क्या होते हैं? आप मेरे घर पे आए, आपकी खिदमत करना मेरा धर्म है। मेरे घर पे मेरी माँ है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे घर पे मेरा बेटा है, उसकी हिफाजत करना मेरा धर्म है। मेरी बहन है, अपनी बहन को इज्जत देना मेरा धर्म है। धर्म ये होता है। धर्म ये नहीं होता कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं पूजा करूं, मैं रोजे रखूं, मैं मंदिरों में जाऊं। ये धर्म नहीं होता। आपकी फैमिली में बाकी सब पढ़ते हैं नमाज और रोजे वगैरह? फैमिली में आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग? पढ़ते रहो, मैं उनके ऊपर जबरन थोड़े मना करूँगा। मैंने कभी किसी को जोर नहीं दिया। लेकिन आप नहीं पढ़ते? मैं नहीं करता। पूजा पाठ करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं करता। अच्छा, आप सलीम जी, आप बता रहे हैं कि मानवता आपने अपनाई है, आपके लिए धर्म मानवता है। कोई घर में आए तो उसको इज्जत देना आपके लिए एक धर्म है। लेकिन सोचिए, ये जो दो लड़के थे जो आपकी दुकान, आपके ऑफिस आए और आके आपका गला काटने की कोशिश की, सर तन से जुदा करने की कोशिश की, आपके स्टेटमेंट की वजह से, जो आपने कुरान को लेकर बात कही थी, तो आप ये कैसी फिर मानसिकता है? एक तरफ आपकी ऐसी सोच और इनकी कैसी मानसिकता है? देखिए, मेरी सोच मेरी है, सामने वाला डाकू है, उसकी जरूर थोड़ा मेरे जैसी होगी। जिसकी गलत है गलत है, और वो दिख रही है लोगों को। आपके जैसे तेवर यूट्यूब पर भी दिखते हैं, तो अब वापस अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो है तंगी, दिक्कत हो रही है। अभी तो शरीर भी कमजोर है, रिकवर होने में टाइम लग जाएगा। हो जाएगा, 100% होएगा। इतना हौसला, इतना शरीर पे, जो हाथ में, पैरों में, कमर में, गले पे इतनी चोट के बावजूद ये हौसला कहाँ से लाते हैं? अंदर ही है सब। सब है, कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। बेहतरीन रिकवर हो गया, और 15-20 दिन में और रिकवर हो जाऊंगा। फिर आपके वो जो बयान और स्टेटमेंट और जो डिबेट है दोबारा देखेंगे? और दिखेगी, आम सामने आएगी, दिखेगी, देखेंगे। चलिए, इंडिया टीवी के माध्यम से एक आखिरी मैसेज आप सभी धर्म के लोगों को, और खास तौर पे जैसे आपके ऊपर हमला हुआ, जो इस मानसिकता के लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे मजहब को फॉलो करना बेकार है जो हमें कत्लो गारत कराए। इंसानियत सीखो, खुद भी कामयाब बनो, अपने पड़ोसियों को भी कामयाब करो, एजुकेशन प्राप्त करो। ये मेरा मैसेज है, और शुरू से देता आया हूं मैं। इसके अलावा मेरा कोई मैं कभी मुसलमान से नफरत नहीं की। एक वीडियो आप मेरी नहीं दिखा सकते जहां पे मैंने मुसलमान से नफरत करी हो। मैं मुसलमान का पक्का हितैषी हूँ। मैं चाहता हूँ मुसलमान कामयाब होके इज्जत बनाए अपनी भारत के अंदर, हर मुसलमान। बहुत शुक्रिया। आपने अभी आप रिकवर हो रहे हैं, अस्पताल लगातार आना जाना हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें समय दिया और हमने आपको परेशान किया, उसके लिए माफी और बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्स मुस्लिम सलीम, इनका सलीम अहमद, इनका ये कहना है कि इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसी भी धर्म को, और खास तौर पे ऐसे धर्म को ये नहीं मानते या ऐसा रूल फॉलो नहीं करते जो किसी की जान लेने को आतुर हो जाए। इनके लिए धर्म के मायने अलग हैं, इनके लिए धर्म के मायने मानवता है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।